हेलो एवरीवन, माय नेम इज राखी एंड आई वेलकम यू ऑल टू गाइडली। और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बहुत ही खास एग्जाम के बारे में। सो एनआईसीएल के लिए जितने भी लोग जा रहे हैं, इस बार का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पैटर्न देख के थोड़ा सा परेशानी है जो महसूस कर रहे हैं। बट इन दिस सेशन आई एम गोना टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू फॉर योर एनआईसीएल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। So let's not waste a single minute and directly go to the presentation. First of all, it is again for descriptive writing. And I take most of these sessions for descriptive writing, whether it's SBI, it's IBPS, now it's NICL. So whatever descriptive exam is there, I'm here to help you out. So if you see the like kind of patterns for descriptive exam, so SBI made some changes. IBPS made some changes too. And why would NICL not make the changes? So it made changes even before IBPS. The session is a little bit late, but don't worry. All the changes are here. And how are you going to uh, get yourself used to of practicing in this kind of system? For that I'm here. So सबसे पहले a step by step guide by Guidely. This is the way your exam is going to be there. So in AO descriptive test, there will be three major parts. First is essay writing, total marks 10, Tracy 10, and comprehension again 10. So total it is 30 minutes we have, 30 marks we have, and we have three questions. All three components are equally divided. So जब equally divided है, so हमें सबको equally equal importance भी देना है, ठीक है? What will be the mode? It is definitely online exam. So you need to type. It is a computer-based typing exam. Your typing speed should be good. So if you lack there, please do start your practice. Time allotted is 30 minutes. Language is only English, and you can only appear in this exam if you are selected for mains. So what is the suggested word limit for essay writing? 200 से 250 की word limit है. Weightage है test, opinion, structure, flow and clarity. Tracy writing 10 again, 1/3 of the given passage. For example, अगर हमारे पास 300 शब्दों का passage है, we need to wrap this passage up in 100 words. 300 है तो 100 में. Tests ability to compress without losing meaning. ट्रेसी में यही होता है कि बड़े से टेक्स्ट को क्या करना होता है, छोटा करके लिखना होता है, बट इसका जो मीनिंग है, जो भी इसके पीछे का एक ऑथर की जो एक फील रहा होगा, दैट व्हाई आई एम राइटिंग दिस पैराग्राफ, शुड बी सेम हियर, नॉट वर्ड फॉर वर्ड. आपको थोड़े से वर्ड्स चेंज करने हैं, पैराफ्रेज करना है. कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे. It is a test of your comprehension, means how well you comprehend how you understand a text. So there will not be objective questions like you get MCQs in your prelims and in mains when you see reading comprehension, as it is descriptive exam, so you need to write the answers in your own words. So what is the importance of descriptive exam in your final selection? So it is as important as your mains exam. So NICL AO is a managerial post, and when you are a manager, it is required that you write reports, you write emails, you send some suggestions, you solve the problems, you see the complaints, you need to talk to your clients, you need to communicate with the higher authorities. So this is the test of your readiness. As well, it helps in ranking and tie breaking. When two candidates have the same objective scores, the descriptive test score becomes the tiebreaker. As well as it can make or break your section. Remember, if your descriptive writing is not good, all the hard work you did so far will be in vain. Nothing can be you just can't take advantage of all your hard work. So please
Be prepared for your descriptor. It's very, very important. Okay, it's qualifying as well as scoring component. चलो, let's talk about the structure now. ऐसे कि हमेशा 3 parts होते हैं. We start with a very good introduction. We write the body paragraphs according to the length, and we conclude in conclusion. So it gives a brief context. Body talks about the logical points, examples, and data. And conclusion summarizes. Tone should be formal, clear, and objective. Length 200 to 250 words. Common topics: current affairs, social issues, economic issues, or insurance and banking topics. So your exam is of insurance pattern, insurance field का exam है, so you should expect something from insurance. Let's see an example. The question is role of insurance in promoting financial inclusion. What should be the structure? It is an outline. हम पहले डिफाइन करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को मत, क्योंकि इसने बोला ना कि रोल क्या है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में, तो पहले बताते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. फिर हम मेंशन करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंस किसकी, इंश्योरेंस की क्या है. क्या क्या रखेंगे मेन पैराग्राफ में कि भाई लो इनकम ग्रुप्स आर वल्नरेबल टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस. Schemes like PMFBY, PMJJBY help rural households, encourage savings, reduces dependency on informal borrowing. तो यही फायदा है अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन अवेयरनेस है, और अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो क्यों लेते हो, ताकि वो आपको सशक्त बनाते हैं. आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी से पैसा ना मांगना पड़े. आप अवेयर हो कि आप इतनी इतनी छोटी छोटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करके कल को बड़े रिटर्न पा सकते हो, कल को अपने आप को सेफ देख सकते हो. And conclusion is insurance is not just protection, it is a tool for economic stability. अगर हर कोई एक लेवल तक सही है, उस लेवल तक पहुंचा हुआ है जो bare minimum है, तो it improves, it strengthens the overall economy. That is the conclusion. अब जो भी हम ऐसे लिखते हैं, we should always be in the word limit. as हमने बोला कि हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो यहाँ देखो हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया. यहाँ पर हमने बात की कि बैंक और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट पिलर है फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करने का. देन वी टॉक अबाउट द 3 बॉडीज जो हमने यहाँ पे रखे थे. सबसे पहले लो इनकम ग्रुप्स, उसको हमने यहाँ पे रखा. देन सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट द स्कीम्स, तो हमारे सेकेंड पैराग्राफ में हमने स्कीम्स को इलेबोरेट किया. एंड देन वी हैड द कंक्लूजन. सॉरी, इसी में हम लोगों ने ये लाइक सेविंग वाला टर्म भी रखा. आप चाहें तो उसको अलग फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से बना सकते हैं एंटर दबा के, अदरवाइज इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं. देन वी कंक्लूडेड बिकॉज द वर्ड लिमिट इज नॉट 350 और 400, so 2 paragraphs are enough. जब वर्ड लिमिट ज्यादा होती है, उस कंडीशन पे हम लोगों को कम से कम 3 पैराग्राफ्स बीच में बनाने पड़ते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के. चलो, सेकेंड इज आर प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग हमारे 10 नंबर का है, इक्वल है, बट यहाँ पर आपको लिखना कम है. सबसे ज्यादा लिखना आपको ऐसे राइटिंग में ही है, बिकॉज ऐसे राइटिंग में उनका सिर्फ एक प्रॉम्प्ट है. You need to think about the ideas and you need to jot the points down and then you start writing. So प्रेसी राइटिंग में it's just opposite. यहाँ पर पैराग्राफ आपको मिलेगा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उसको स्निप करना है, छोटा करना है, and then आपको उसे अपने वर्ड्स में लिखना है. So as it is 1/3 of the original paragraph, it will be very smooth because it is important that you understand the idea and you don't copy paste, you just use formal language and you write like aram se. Capture the central theme and key supporting points. No personal opinion, examples or unnecessary details. Always formal, neutral and in third person. Third person मतलब आप यहाँ पर कभी भी I या we की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर आप बात करते हैं he, she इस तरीके से.
Then add a suitable title followed by a single well organized paragraph. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास में एक काफी बड़ा एक अच्छा सा पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक दो, ये देखो यहाँ पर थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये टोटल पूरा हमारा बड़ा पैराग्राफ हो गया। अब इस बड़े से पैराग्राफ में हमने क्या करना है? इस बड़े से पैराग्राफ को सबसे पहले हमने पढ़ा तो देखा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन आता है, यहाँ पर इसको और डिटेल में लिखा गया है। So over the last decade, the use of social media has grown exponentially, especially among the youth. That and that. तो समझ में आ रहा है कि किस बारे में बात कर रहा है? It is talking about social media. When you know कि basically जो main हमारा लाइक टॉपिक क्या है, तो इजी हो जाता है टॉपिक के साथ में से करना। जब हमें टॉपिक पता होता है तो हम उस पर थोड़ा सा अपना थॉट वर्क कर सकते हैं बिफोर रीडिंग अहेड। आपको बनाना तो पैसेज इसी से है, बट इसके पैसेज से ये जरूरी है कि बनाने के पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच लो। सेकंड पे आते हो तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सडन स्टडीज शो दैट कांस्टेंट एक्सपोजर टू curated online lives and that okay। तो लास्ट लाइन को पढ़ोगे तो आपको पता चलता है मेंटेन एन आइडियल आउटलाइन इमेज फर्दर कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस फॉर्म ऑफ फोबिया ऑफ या फियर ऑफ मिसिंग आउट एंजाइटी टीनेजर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, लो सेल्फ स्टीम डिप्रेशन, इसकी बात कर रहा है। इस पर आओगे मोर ओवर साइबर बुलिंग ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये भी समझ में आ रहा है कि नेगेटिवली बात कर रहा है। On the positive side, social media can promote mental health awareness। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। लास्ट में कह रहा है इट इज अनरेगुलेटेड, अगर ये अनरेगुलेटेड है तो ये बहुत लॉस पहुंचा सकता है, बट इफ इट इज रेगुलेटेड इट कैन गिव सम एडवांटेजेस एज वेल। सो इट वाज अबाउट सोशल मीडिया, कैसे ये छोटे बच्चों पर, टीनेजर्स पर क्या प्रभाव डाल रहा है, अगर रेगुलेटेड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स है, रेगुलेटेड है तो क्या इसके बेनिफिट्स है। नाउ यू राइट इट इन जस्ट वन थर्ड, तो आपके पास मोटे मोटे पॉइंट आ चुके हैं। अब आप आराम से इसका प्रेसी इस तरीके से बना सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट यस योर राइटिंग शुड बी गुड। राइटिंग शुड बी गुड से क्या मतलब है? इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी लिखें हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, बिकॉज इफ you make grammatical mistakes or your spellings are poor or whatever you are writing is not giving the coherence or it is mismanaged, the flow is not right, then there are chances कि आपके नंबर कट जाए। as well as जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक की एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी होती है, काइंडली फॉलो दैट वोकैब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज a paragraph जिसे हमने वन थर्ड किया है। Let's talk about the comprehension now. So as you all know, similar 10 marks का है। एक पैसेज है, पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्या पता करना है, what is the central idea, what is the tone and what should be the right flow. After that, we need to identify keywords in the question. We need to match them with the relevant section. आंसर इन योर ओन वर्ड्स, आपको खुद के शब्दों में बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, राइट। वन सेकेंड, यस नाउ वी आर बैक। अब यहाँ पे देखो एक पैसेज है, आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक इंडियन क्लासरूम्स दैट एंड दैट, ठीक है। ये हमारा पैसेज है कोविड-19 के ऊपर, किस तरीके से उस समय पे पढ़ाई की गई, कैसे कैसे चेंजेस आई, कैसे हमने उस सिलेबस में जाके लाइक उसको ऑनलाइन मोड में लाके कैसे फिनिश किया, ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब आप देखोगे तो इससे हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर टीचर्स डीलिंग विद नाउ अपार्ट फ्रॉम टीचिंग द सिलेबस, what factors worsened the learning gap during the pandemic in rural areas, what is the purpose of remedial programs and bridge courses, mention 2 factors necessary for the success of post-COVID classroom reforms and suggest a suitable title. Apart from this, all 4 questions can easily be found in the passage. How? क्योंकि आप देखोगे ये सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। बस आपकी एक ही चीज का टेस्ट है कि आप जो भी आंसर्स बनाएं उनको अपने शब्दों में बताएं।
प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपको पैसेज में गिवन है। आपसे बात कर रहे हैं जहां पर टाइटल की, अब आपको इस पूरे को रीड करके एक टाइटल देना है। एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है, नो इट इज नॉट। जब आप रीड करोगे तो आप एक सूटेबल टाइटल इजीली बना लोगे। तो ये मैंने आज आपको दिया है इसका एक ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग ऑन डिटेल, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको एक्चुअली सॉल्व करना है। But first, it's important you to know that how the things are going to be there. So this is the pattern. This is how we'll do it there. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस क्या होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, रीडिंग शुड बी अ थिंग दैट यू नीड टू डू एवरी डे। आपको कम से कम 20 से 30 मिनट डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। If you do this, your descriptive will be as simple as it ever can be. So work on your reading, be a fast reader, understand करिए text को ज़्यादा से ज़्यादा, try to read the complicated text and try to understand it. When you see the new words every day, they will not be new anymore, they will be very simple for you. Alright, so I'll see you all in the next session. Till that time, bye bye and take care. All the best.